Intercostal spaces and their contents. Intercostal spaces anterior and posterior, इनके number में difference है. Why is the difference between the two aspects of the intercostal spaces, anterior and posterior? There are 9 anterior intercostal spaces and 11 posterior intercostal spaces. So how many spaces anteriorly? 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. So there are 9 intercostal spaces. The 10th and 11th intercostal space, they do not continue anteriorly because of the presence of the floating ribs. Because floating ribs do not continue and complete anteriorly by articulating with the sternum. So these spaces are, for practical purposes, anteriorly absent. Posteriorly, we have 11 spaces for the 12 ribs. But these lower 2 spaces, they do not continue and complete anteriorly because of the floating ribs. You must know the contents of each of these spaces. So generally, each intercostal space contains muscles, which are called the intercostal muscles and include the external, internal, and transversus thoracis muscle. Then we have intercostal nerve for each space, and then intercostal vessels. The intercostal vessels comprise of anterior and posterior intercostal arteries and veins. So these are the contents of the intercostal spaces. What is intercostal nerve? Where does it come from? Or what is the origin of an intercostal nerve? Intercostal nerve is basically the anterior primary ramus of the thoracic spinal nerves. So we have 12 thoracic spinal nerves, out of which the 11 thoracic spinal nerves are called intercostal nerves, whereas the 12th thoracic spinal nerve, since it emerges inferior to the 12th rib, it is named as subcostal. Sub, inferior, under or beneath, costal, rib. So subcostal nerve, जो 12th thoracic spinal nerve होती है, वो जो है अपनी 12th rib के नीचे से निकलती है, इसलिए उसका नाम intercostal nerve नहीं है, क्योंकि वो intercostal space में run नहीं कर रही, rather it is emerging and coursing inferior to the 12th rib, इसलिए उसका नाम क्या है? Subcostal nerve. So T12 is also called subcostal nerve. There are 12 thoracic spinal nerves, जिनके anterior rami को intercostal nerves कहते हैं 1 to 11 तक, और जो 12 thoracic spinal nerve का anterior ramus है, उसका नाम intercostal नहीं होता, उसका नाम subcostal होता है. Secondly, जो classification है intercostal nerves की, वो typical और atypical है. We classify the intercostal nerves into typical and atypical. So typical thoracic spinal nerves को typical क्यों कहते हैं? क्योंकि वो thorax तक confined होती हैं. उनका area of supply, उनका जो course है और उनका जो area of distribution है, course है और area of supply जो है, वो thoracic thorax तक confined है, thorax तक limited है, वो सिर्फ thorax को supply करती हैं. जबकि जो atypical nerves हैं, intercostal nerves, atypical जो हैं, वो अपने area of distribution की वजह से वो atypical बन जाती हैं, क्योंकि वो thorax तक ही limited नहीं रहती, वो thorax के beyond भी structures को supply करती हैं. So हम देखते हैं कि वो किन structures को supply करती हैं. Typical intercostal nerves T3 से लेकर T6 तक होती हैं. इसका मतलब है कि third thoracic spinal nerve का anterior ramus से लेकर sixth thoracic spinal nerve के anterior ramus तक जो intercostal nerves होती हैं, वो typical कहलाती हैं. इनके अलावा T3 से लेकर T6 के अलावा
जो बाकी नर्व्स रह गई हैं वो तमाम की तमाम एटिपिकल कहलाती हैं। क्यों? क्योंकि जो T1 और T2 है, फर्स्ट थोरैसिक स्पाइनल नर्व का एंटीरियर रेमस और सेकंड thoracic spinal nerve का anterior ramus. They are both of these anterior rami of the thoracic spinal nerve, upper two thoracic spinal nerve, they are pulled towards the brachium, that is upper limb, that is upper arm. ठीक हो गया? जिनमें से आपको पता है कि जो T1 का anterior ramus है, it participates to form the brachial plexus. जबकि T2 का जो एंटीरियर रेमस है उसका दूसरा नाम क्या है? इंटरकॉस्टोब्रेकियल नर्व, जो कि सप्लाई करता है स्किन ऑफ द बेस ऑफ एक्सिला को। सो इन ये तो दोनों निकल के एंटीरियर रेमाए, अपर टू थोरैसिक स्पाइनल नर्व्स के एंटीरियर रेमाए निकल गए। ये तो थॉरिक्स तक लिमिटेड नहीं रहते, जबकि दे आर रादर पुल्ड अवे फ्रॉम द थॉरिक्स टुवर्ड्स द अपर लिम्ब। फिर आगे T3 से लेकर T6, जो ये इंटरकॉस्टल नर्व्स हैं, ये टिपिकल इसलिए हैं क्योंकि ये कंफाइंड रहती हैं अपने एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में और अपने कोर्स में टू द थॉरिक्स। अब आगे T7 से लेकर नीचे T12 तक, ये जो इंटरकॉस्टल नर्व्स हैं ये एटिपिकल हैं और इनका दूसरा नाम क्या है? थोरैको एब्डोमिनल इंटरकॉस्टल नर्व्स भी ये कहलाती हैं, या सिंपली थोरैको एब्डोमिनल नर्व्स कहलाती हैं, क्योंकि ना सिर्फ जो T7 से ऑनवर्ड्स इंटरकॉस्टल नर्व्स हैं वो ना सिर्फ थॉरिक्स को सप्लाई करती हैं बल्कि दे आर आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड टू द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, जिसकी मुनासबत से इनको नाम दिया जाता है थोरैको एब्डोमिनल नर्व्स का, एंड दे आर क्लासिफाइड एज एटिपिकल इंटरकॉस्टल नर्व्स। Let's discuss the origin, course, branches and distribution of a typical intercostal nerve. A typical intercostal nerve, as we have established earlier, कि ये किसकी ब्रांच होती है, ये कहाँ से आती है? ये बेसिकली एंटीरियर प्राइमरी रेमस है thoracic spinal nerve का। ठीक हो गया? सो जो thoracic spinal nerve का एंटीरियर प्राइमरी रेमस है उसका दूसरा नाम क्या है? इंटरकॉस्टल नर्व। जो टिपिकल इंटरकॉस्टल नर्व होती है वो इंटरकॉस्टल स्पेसिस में रन करती है बिलो द इंटरकॉस्टल वेसल्स। सो जो नर्व होती है वो अपने इंटरकॉस्टल स्पेस में जो वेसल्स हैं, आर्टरीज और वेन्स, उनके नीचे बिलो या इंफीरियर रन करती है। अगर आप बैक से स्टार्ट करें इसका कोर्स टिपिकल इंटरकॉस्टल नर्व का, पोस्टीरियरली इसको आप ट्रेस करना शुरू करें, तो एट फर्स्ट द टिपिकल इंटरकॉस्टल नर्व इन इट्स कोर्स पोस्टीरियरली lies between the pleura and the posterior intercostal membranes. ये बेटा आपको डोर्सल रेमस दिखाया हुआ है इंटरकॉस्टल नर्व का, और ये जो आगे कंटिन्यू कर रहा है ये है एंटीरियर प्राइमरी रेमस इंटरकॉस्टल नर्व का। सो यहाँ पे पोस्टीरियरली ये जो इंटरकॉस्टल नर्व है ये पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल मेम्ब्रेन और प्लूरा के बीच में रन करती है। फिर जैसे जैसे ये मूव फॉरवर्ड और एंटीरियरली करती है, it comes to lie between the internal intercostal and innermost intercostal muscles. फिर further anteriorly, ये आपको बेटा innermost intercostal muscle दिखाया हुआ है यहाँ पे, और ये वाला जो मसल है ये आपको दिखाया हुआ है internal intercostal. So बाहर से अंदर की तरफ आपने देखना है। ठीक हो गया? So finally, it keeps running between these two muscles, innermost intercostal and internal intercostal anteriorly. ये जो बेटा प्लेन बनता है, ये प्लेन होता है न्यूरोवैस्कुलर प्लेन होता है जिसके अंदर नर्व्स और वेसल्स रन करती हैं इस प्लेन के अंदर, और ये प्लेन लाई करता है बिटवीन दीज टू मसल्स, इनरमोस्ट इंटरकॉस्टल एंड इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। जब स्टर्नम के, ये स्टर्नम आ गई एंटीरियरली, जब स्टर्नम के करीब टिपिकल इंटरकॉस्टल नर्व पहुंचती है
तो वहां पे जो इंटरनल थोरैसिक आर्टरी होती है उसको एंटीरियरली क्रॉस करती है और ट्रांसवर्सस थोरैसिस को क्रॉस किया इसने, पियर्स किया इंटरनल इंटरकॉस्टल को, जैसे कि आपको इस मसल को ये पियर्स करती हुई नजर आ रही है नियर द स्टर्नम, इंटरनल इंटरकॉस्टल को। फिर आगे सामने एंटीरियर इंटरकॉस्टल मेम्ब्रेन, देन इसके ऊपर सबसे ऊपर थोरैसिक वॉल का मसल पेक्टोरालिस मेजर, और फिर फाइनली इट एंड्स बाय सप्लाइंग द skin by giving cutaneous branches to the skin of the anterior thorax and mammary gland. Moving further forward, this was all about the course of a typical intercostal nerve. Let's move on to the branches of the typical intercostal nerve. A typical intercostal nerve gives off a lateral cutaneous branch. Here you can see the lateral cutaneous branch emerging from the main trunk of the typical intercostal nerve. तो यहाँ पे जो lateral cutaneous branch सबसे पहले निकलती है typical intercostal nerve से, नाम बता रहा है कि वो lateral, उसने एंट्रोलैटरल एरिया को थॉरिक्स की जो वॉल है, थोरैसिक वॉल जो है, उसके एंट्रोलैटरल एस्पेक्ट को सप्लाई करना है। और चूंकि नाम बता रहा है कि ये कुटेनियस है, कुटेनियस का मतलब है रेफरिंग टू द स्किन, सो इट इज गोइंग टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द स्किन ऑफ द एंट्रोलैटरल थोरैसिक वॉल बाय डिवाइडिंग इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिविजन्स। ये तकरीबन मिडवे निकल जाती है ये ब्रांच, मिडवे बिटवीन द thoracic vertebra posteriorly and sternum anteriorly. Lateral cutaneous branch जो है, after it is given off by the typical intercostal nerve, it pierces the, ये आपको कौन कौन से मसल को पियर्स करती हुई नजर आ रही है, इंटरनल इंटरकॉस्टल एंड देन फाइनली एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। और फिर चूंकि लैटरली आ गई है, एंट्रोलैटरली है, तो आपको पता है कि एंट्रोलैटरल आपने अपर लिम्ब में मसल पढ़ा था जिसने थोरैसिक वॉल को लैटरली कवर किया हुआ था, जो अपर 8 रिब्स से निकल रहा था, उसका नाम था सेरेटस एंटीरियर। उसको भी ये पियर्स करेगी और फाइनली अपनी 2 डिविजन्स में एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवाइड होके इस एरिया की स्किन को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी थोरैसिक वॉल की। फर्दर आगे muscular branches निकलेंगी from the typical intercostal nerve on its way towards the sternum within the this neurovascular plane between the innermost intercostal and internal intercostal. ये muscular branches भी on its way देती जाएगी। Finally ये दे देगी anterior branches. Anterior branches जो हैं वो ना सिर्फ सप्लाई करती हैं स्किन को near the sternum, anteriorly and near the midline. इसके अलावा जो anterior branches होती हैं, देखें anterior branches भी आपको divide होती नजर आ रही हैं lateral और medial branches में। इसके अलावा जो anterior branches हैं typical intercostal nerve की, वो मसल्स को भी सप्लाई करती हैं, खास तौर पे एक्सटर्नल ओब्लिक मसल जो कि एब्डोमेन का मसल है। और कौन सी टिपिकल इंटरकॉस्टल नर्व सप्लाई देंगी, क्योंकि एक्सटर्नल ओब्लिक बेटा तमाम रिब्स से नहीं निकलता, वो लोअर रिब्स से निकलता है, तो लोअर रिब्स पे आपकी टिपिकल इंटरकॉस्टल नर्व आ जाएगी 5th और 6th। वो मस्कुलर ब्रांचेस देगी टू सम डिजिटेशंस ऑफ द एक्सटर्नल ओब्लिक मसल जो कि मसल है एब्डोमेन का, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल का मसल है। In some books, posterior branches भी mentioned है typical intercostal nerve की। जब वो branches अगर present हो तो they will supply the skin over the scapula, back पे scapula and latissimus dorsi. इसके ऊपर जो skin होती है उसको भी posterior branches if they are present, तो वो skin over the scapula और latissimus dorsi को supply करती हैं। टिपिकल और एटिपिकल इंटरकॉस्टल नर्व्स की बेटा जो ब्रांचेस हैं उनमें डिफरेंस है, और ये डिफरेंस पूछा जाता है एमसीक्यूज में और एससीक्यू में
कि सपोज वो आपको एग्जांपल दे देंगे, जैसे मैंने अभी आपको एससीक्यू बताया कि राइट डाउन द कोर्स, ब्रांचेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए टिपिकल इंटरकोस्टल नर्व। सिमिलरली वो आपको सवाल दे सकते हैं कि राइट डाउन द कोर्स, ब्रांचेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट thoracic spinal nerve, 8th thoracic spinal nerve और 12th thoracic spinal nerve। ठीक है, सो कीप दैट इन माइंड कि खास तौर पे जो इसकी ब्रांचेस हैं, फर्स्ट thoracic आ जाएगी, सेकंड thoracic spinal nerves आ जाएंगी जो कि एटिपिकल इंटरकोस्टल नर्व्स हैं, फिर 7 से ऑनवर्ड्स जो एटिपिकल इंटरकोस्टल नर्व्स हैं उनकी ब्रांचेस में खास तौर पे डिफरेंस है from those arising from the typical intercostal nerve. So please keep this difference in mind, especially in reference to your written examination. Atypical intercostal nerve, first of all, the first thoracic spinal nerve T1. इसका बेटा जो anterior division होती है first thoracic spinal nerve की, एंटीरियर डिवीजन से मेरी मुराद है जो इसका प्राइमरी रेमस है, एंटीरियर रेमस है, जो वेंट्रल रेमस है फर्स्ट thoracic spinal nerve का। that ramus divides into two branches, one larger branch and one smaller branch. जो larger branch होती है, it leaves the thorax in front of the neck of the first rib and enters the upper limb to participate in the formation of brachial plexus. Secondly, जो smaller branch होती है anterior ramus of the first thoracic spinal nerve की, अब उसका नाम हम कहेंगे first intercostal nerve. That nerve वो smaller in size होती है, runs along the first intercostal space and ends on the front of the chest as the first anterior cutaneous branch of the thorax. This is a very important point, very important MCQ. First thoracic spinal nerve gives off a smaller branch जिसका नाम है first intercostal nerve. Most of the times इसकी जो branches होती हैं वो सिर्फ एक होती है जिसका नाम है anterior cutaneous branch. Second intercostal जो nerve है, which is formed by the anterior ramus of the second thoracic spinal nerve. It almost resembles in its course and branches to the typical intercostal nerve, except that जो इसकी lateral cutaneous branch होती है, वो जिस तरह आपको typical intercostal nerve की ये lateral cutaneous branch anterior और posterior branches में divide होती नजर आ रही है, unlike this, जो lateral cutaneous branch second intercostal nerve की होती है वो anterior posterior branches में divide नहीं होती। और इसी nerve को जो lateral cutaneous branch है second intercostal nerve की, इसका दूसरा नाम है intercostobrachial nerve. Regarding the remaining atypical nerves, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th और 12th का नाम है subcostal. हमने कहा कि जो लोअर वाली 7 से ऑनवर्ड्स जो इंटरकॉस्टल नर्व्स हैं वो एटिपिकल हैं और उनको हम एक और नाम से भी जानते हैं एज थोरैको एब्डोमिनल नर्व्स. सो थोरैको जो एब्डोमिनल नर्व्स हैं अगेन वो एंटीरियर प्राइमरी रेमाई ही हैं 7 से ऑनवर्ड्स 12 तक, लेकिन इनके नाम हम चेंज कर देते हैं. जो 11 तक हैं उनको हम इंटरकॉस्टल कहते हैं, दो दे आर क्लासिफाइड एज एटिपिकल, जबकि जो 12th वाली है उसका नाम है सबकॉस्टल नर्व. इनका बेटा जो ऑलमोस्ट जो अरेंजमेंट होती है इट इज सिमिलर टू दी टिपिकल वंस. Anteriorly they continue to run within the intercostal space, ठीक है, just like typical nerves. वहां पे जाके
ये अब चूंकि ये लोअर आ गई हैं, थोरैको एब्डोमिनल आ गई है, मतलब लोअर थोरैसिक जो है इंटरकोस्टल स्पेसेस 7 से ऑनवर्ड्स, ये वहां पे आ गई हैं। तो वहां पे आने के साथ आपको पता है कि अब लोअर रिब्स पे कौन से मसल्स लगे हुए हैं, एंट्रोलैटरल एब्डोमिनल वॉल के मसल्स लगे हुए हैं, जिनके नाम क्या हैं, इंटरनल ओब्लीक, एक्सटर्नल ओब्लीक, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस, और मिड लाइन की तरफ, स्टर्नम से नीचे मिड लाइन की तरफ रेक्टस एब्डोमिनस। इनको सप्लाई करती हैं ये जो लोअर हमारे पास थोरैको एब्डोमिनल नर्व्स हैं, और ये एंड हो जाती हैं एज द एंटीरियर क्यूटेनियस ब्रांचेस फॉर द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। So they also have muscular branches and cutaneous branches, even though their anterior cutaneous branches are much more pronounced in comparison to lateral branches or muscular branches. इनकी दो prominent branches होती हैं, anterior cutaneous branch and the this muscular branches. फर्स्ट जो इंटरकॉस्टल स्पेस है वो भी स्मॉलर होती है, तो उस स्पेस के अंदर जो नर्व रन कर रही है उसका साइज भी स्मॉलर है। जबकि ये आ गई सेकंड इंटरकॉस्टल नर्व। सेकंड इंटरकॉस्टल नर्व की जो लैटरल क्यूटेनियस ब्रांच है, you can see that it is termed as intercostal brachial nerve since it is supplying the base skin over the base of the axilla region. उसके बाद ये बजाते खुद जो इसका अपना स्टेम है, that is running towards anteriorly within the जो इसके अंदर है सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस, ठीक है। सो इट डज गिव ऑफ द लैटरल क्यूटेनियस ब्रांच, और सामने खुद इट कंटिन्यूज टू मूव एंटीरियरली, जो इसका मेन ट्रंक है। जबकि यहाँ पे जो एंटीरियरली जो एरिया ऑफ स्किन होता है, दैट इज नॉट एक्चुअली सप्लाइड बाय द इंटरकॉस्टल नर्व्स। इसको कौन सा एरिया, कौन सी नर्व्स जो हैं बेसिकली यहाँ पे सप्लाई करेंगी T2 तक? This area is overlapping area of the intercostal nerves, third से लेकर onwards with. So T2 cutaneous innervation is an area of overlap between the supraclavicular nerves above and area of distribution by the intercostal nerves below. So T2 is the area of overlapping between these two sets of nerves, as the anterior cutaneous branch of first intercostal nerve is often missing.